Good morning, everyone, and welcome to the class. Today, we will start a new chapter in history, and the name of the chapter is New Questions and Ideas. This is your chapter 6 in the new book and chapter 7 in the old book. Okay. The content of the chapter is same, only the number of the chapter is different. है ना? In this chapter we are going to deal with new questions and ideas. It means that during that time we see that so many new thoughts, so many new ideas were generating, and these new thoughts, these new ideas were generating, and they were causing, they caused starting of new faiths and new religion. So the first question is why these new ideas were generating, है ना? Why these new questions, why these new ideas were generating in the minds of the people? What was the reason behind? So what we find कि during at this time so many changes were taking place in the lives of the people. So many changes were taking place in the society, and that is the reason. Because of these changes, what happens that there are some people who starts thinking in other way. Not everyone, but there are some people who starts thinking, who starts asking so many questions, है ना? उनके दिमाग में कई तरह के सवाल आने लगते हैं बिकॉज ऑफ चेंजेस. तो इन्हीं न्यू क्वेश्चंस और आइडियाज़ के बारे में हमें पढ़ना है. और इसमें से ही एक जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हम कह सकते हैं एक इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटी जिनके बारे में हमें पढ़ना है, जिनके दिमाग में इस तरह के न्यू क्वेश्चंस, न्यू आइडियाज़ जनरेट हुए, और इस न्यू क्वेश्चन और न्यू आइडियाज़ के जनरेशन के साथ ही उन्होंने एक नए धर्म की स्टार्टिंग की. ही इज़ नन अदर देन गौतम बुद्धा, है ना? सो वी आर गोइंग टू नो अबाउट गौतम बुद्धा. Okay. So Siddharth was the original name of Gautam Buddha, and Siddharth. Okay. So he was the founder of Buddhism. Gautam Buddha was the founder of Buddhism, and his childhood name, his original name was Siddharth, and he was born about 2500 years ago, है ना? आज से 2500 years ago उनका बर्थ हुआ था. और जब उनका बर्थ हुआ, जो कि टाइम हम बता रहे हैं आपको, 2500 years ago, है ना? तो ये वो समय था जबकि बहुत ही रैपिड चेंजेस आ रहे थे लोगों की लाइफ्स में, है ना? और जैसे कि हमने देखा था प्रीवियस चैप्टर में, महाजनपदास में कुछ जो राजा थे, सम किंग्स बिकेम वेरी मच पावरफुल, है ना? नए सिटीज़ बन रहे थे, लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आ रहे थे. अगर विलेजेस की भी लाइफ को देखें तो वहाँ भी चेंजेस आ रहे थे, है ना? तो जो चेंजेस आ रहे थे उसके कारण जो थिंकर्स थे, दे स्टार्टेड टू थिंक अबाउट इट, दे ट्राई टू अंडरस्टैंड दीज चेंजेस इन सोसाइटी, है ना? और in this process of thinking, in this process of understanding these changes, they also wanted to try and find out the true meaning of life. What is the purpose of life? What is the meaning of life? Such questions were coming in the mind of some people, and Buddha was also one among them. Because we see Siddharth, what was his original name? He belonged to a small Gana known as Sakya Gana.
ठीक है. He was a Kshatriya and he belonged to a royal family, a Gana, about which we have studied in the previous chapter, है ना. जब हमने वैशाली वज्जी के बारे में पढ़ा था तो हमने देखा था ना कि वहाँ पर in Vajji there was a new form of government which was known as Gana or Sangha. So one of the Gana was Sakya Gana and he belonged to that Gana only. So when he was a young man, so many questions used to come in his mind and he was not happy and satisfied with his life. He was living in the palace. He belonged to a royal family. Every luxuries and comfort of life he had, but still he was not happy because so many questions were coming in his mind and the questions were really disturbing him a lot. And the result was that one day he left the comfort of his home because he wanted to gain knowledge. He was not at all satisfied with his life, and he was of the opinion that he must have the knowledge. He's lacking knowledge, and he's not having the true knowledge of life. So he left his palace, he left his family, his wife, his child, his parents, everybody. And for what he left all of them? In search of knowledge, है ना, क्योंकि उनको ज्ञान चाहिए था. And he wandered from one place to another for several years. And during this period he used to meet so many people, he hold discussion with so many people and thinkers, and then he finally decided that he has to find his own path to realization, है ना. Realization means जो search of knowledge वो चल रहा था उनका, जिसके लिए उन्होंने घर छोड़ा, जिसके लिए वो जगह जगह पर घूम रहे थे, लोगों से मिल रहे थे, डिस्कशन कर रहे थे थिंकर्स के साथ. अब उन्हें ये समझ में आया कि ये ज्ञान उनके अंदर ही है. इट्स नॉट इन द सराउंडिंग्स, द नॉलेज इज इनसाइड. यू नीड टू रियलाइज इट. हमारे जैसे साधारण लोग उस लेवल पे हम नहीं सोच सकते. वी कैन नॉट go to that level. He was an extraordinary person. His way of thinking was completely different from common people, and so he, after wandering for so many years, after meeting with thinkers and discussing with thinkers, he came to understand that he has to meditate. He has to meditate in order to gain knowledge. And he started meditating for days under a peepal tree at Gaya in Bihar. At that time the place was Gaya, Bihar. Bihar में गया नाम की एक जगह है. बिहार में गया, और गया में एक पीपल का पेड़ है, ठीक है. उस पीपल के पेड़ के नीचे वो बैठ गए और उन्होंने मेडिटेशन स्टार्ट कर दिया. He stood behind this under that peepal tree and started meditation. And here he attained enlightenment. This is very important word. Enlightenment. So what does it mean? Enlightenment. इसका ये मतलब होता है कि लाइट से ये बना है, जिसमें मेन वर्ड है वो लाइट है. एनलाइटन होना, एनलाइटन मतलब प्रकाश का मिलना, प्रकाश का मिलना. तो प्रकाश के मिलने का जो प्रोसेस है एनलाइटनमेंट. सो दिस इज ज्ञान का प्रकाश. देखिए इग्नोरेंस जो हमारा होता है ना, उसको अंधकार कहते हैं. जब तक हम इग्नोर्ड होते हैं, इग्नोरेंस जब तक हमारे अंदर होता है, हमें चीज़ों के बारे में पता नहीं होता है, तो वो क्या है, दैट इज़ डार्कनेस ऑफ इग्नोरेंस. अंधेरा छाया रहता है. लाइट है, लाइट इज़ देयर, बट स्टिल darkness is there because we are not having the
नॉलेज। तो जब हमें ज्ञान मिलता है तो ज्ञान इज जस्ट लाइक लाइट, है ना। जैसे घर में रूम में अंधेरा है, जैसे ही हम स्विच ऑन करते हैं लाइट हो जाता है, तो उसी तरह से जब हमें ज्ञान मिल जाता है तो जो हमारे दिमाग के अंदर जो इग्नोरेंस का डार्कनेस होता है वो ख़त्म हो जाता है, और इसी को हम लोग एनलाइटनमेंट कहते हैं। तो जब गौतम बुद्धा उस समय वो सिद्धार्थी कहलाते थे, जब वो गया में पीपल के पेड़ के नीचे बैठ कर के बहुत सारे दिनों तक मेडिटेशन किया, तो लास्टली क्या हुआ, उनको एनलाइटनमेंट हो जाता है। और उसके बाद जब उनको एनलाइटनमेंट हो जाता है यानी कि उनको ज्ञान मिल जाता है। एनलाइटनमेंट मीन्स नाउ ही गॉट द लाइट ऑफ नॉलेज, है ना। नाउ darkness of ignorance is no more there, and he has got the light of knowledge. So enlightenment के बाद he started to be known as Buddha. ये जो सिद्धार्थ थे ये क्या जाने लगे, किस नाम से, बुद्धा, है ना। he came to be known as बुद्धा। एंड ये जो गया था ये क्या कहलाने लगा, it came to be known as बोध गया, है ना। और जो पीपल का ट्री था जिसके नीचे बैठ करके उन्होंने मेडिटेशन किया था, उस पीपल के ट्री को क्या कहा जाने लगा, बोधि वृक्ष। दिस पीपल ट्री केम टू बी नोन एज बोधि वृक्ष। ठीक है। अब यहाँ पे बुद्धा का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द बुद्धा। हम कहते हैं बुद्धि का क्या मतलब होता है, दिमाग, है ना। बुद्धिमान होना यानी कि वाइज होना, बुद्धू होना यानी कि वाइज नहीं होना, दिमाग नहीं होना, है ना। तो बुद्धा का मतलब क्या हुआ, बुद्धा का मतलब हो रहा है द वाइज वन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बुद्धा, द मीनिंग ऑफ बुद्धा इज द wise one. Okay, so बोध गया में उनको ज्ञान मिलती है, और उसके बाद वो बोध गया से वो निकल जाते हैं, और तब वो कहाँ पहुँचते हैं, फर्स्ट जो उसके बाद उनका स्टॉपेज होता है दैट इज़ सारनाथ, जो हमारे बनारस के बगल में है, जहाँ पर हम सब गए होंगे वहाँ पे, है ना। आप सब गए होंगे अपने स्कूल के पिकनिक से में ही हम जाते हैं सारनाथ। तो सारनाथ जो है वो वहाँ पर सबसे पहले बोध गया के बाद वहीं पर आते हैं, और जो अपनी पहली जो टीचिंग उन्होंने दी, पहली जो उन्होंने पढ़ाया, क्योंकि उनको ज्ञान मिला है, तो जब हमें ज्ञान मिल गया तो अब क्या हमारा काम है, उस ज्ञान को स्प्रेड करना, टू स्प्रेड दैट नॉलेज, दैट इज हिज ड्यूटी, है ना। जो जिस इग्नोरेंस के कारण वो इतने परेशान थे, उन्होंने अपने घर को छोड़ा, एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहे, इतने दिनों तक मेडिटेशन किया, अब लास्टली नाउ ही वाज इनलाइटेंड, तो नाउ इट वाज हिज ड्यूटी टू स्प्रेड दिस नॉलेज एंड ही स्टार्टेड टीचिंग people. So first teaching was done in Sarnath. This is the importance of Sarnath for Buddhist people. Buddhism में सारनाथ का यही इम्पोर्टेंस है ना। और उसके बाद उन्होंने पूरी लाइफ जो है वो ट्रैवल ही करते रहे। He used to travel on foot only, and he used to go from one place to another, and the main purpose of his life was to spread the knowledge which he got from such meditation, and इतने हार्ड वर्क के बाद उन्होंने जिस ज्ञान को पाया तो उस ज्ञान को वो कैसे लोगों तक पहुंचाए। और देन लास्टली ही पास्ड अवे एट कुशीनारा, द प्लेस इज कुशीनारा। ओके, सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट जो बुद्धा की जो स्टोरी है वो यही है। अब हम लोग क्या देखेंगे, अब हम लोग देखेंगे कि आखिर बुद्धा ने क्या पढ़ाया, है ना, क्या उनका टीचिंग था, व्हाट वाज द टीचिंग्स ऑफ गौतम बुद्धा। ओके, ये हमने उनकी लाइफ के बारे में देख लिया।
टीचिंग ऑफ बुद्धा क्या थी? बुद्धा ने सबसे पहले तो ये बताया कि लाइफ इज़ फुल ऑफ सफरिंग्स एंड अनहैप्पीनेस। हमारी लाइफ में बहुत सफरिंग है, बहुत परेशानियां हैं, है ना? सही में वी ऑल्सो फील इतनी सारी दुख, तकलीफ, सफरिंग्स, अनहैप्पीनेस। मोस्टली हम दुखी रहते हैं, हाँ खुश भी होते हैं, बट खुशी जो होती है वो कम होती है। हमारी जो खुशी जो होती है वो बहुत शॉर्ट लिव्ड होती है, फिर से हम परेशान हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। तो ऐसा लगता है कि हमारी लाइफ में सफरिंग और अनहैप्पीनेस ही भरी हुई है। ये क्यों होता है? वाई आवर लाइफ इज फुल ऑफ सफरिंग्स एंड अनहैप्पीनेस? बिकॉज वी हैव क्रेविंग्स, वी हैव डिजायर्स। हमारे अंदर बहुत सारी इच्छाएं हैं, बहुत सारी चीज़ों को पाना चाहते हैं। वी वॉन्ट टू गेट सो मेनी थिंग्स, नॉट ओनली materialistic. So many things are there which we want to get, and if we don't get them, we become unhappy, and if we get them, we become happy. But this happiness is not long lived. Very soon we start craving for something new, है ना? कुछ भी, किसी भी चीज़ के लिए हम क्रेव करते हैं, डिज़ायर करते हैं, वो चीज़ हमें मिल गई, हम खुश होते हैं, लेकिन वो खुशी हमेशा के लिए नहीं होती है ना? थोड़े ही समय में हमें क्या होता है कि अब कुछ और चाहिए, अब हम दूसरी चीज़ के लिए क्रेव करना स्टार्ट करते हैं, डिज़ायर करना स्टार्ट करते हैं। तो ये जो है कि जितना भी हमें मिलता जाता है, फिर हम उससे सेटिस्फाइड नहीं होते, वी डोंट गेट सेटिस्फाइड। Instead we want even more and more. तो हमारी जो इच्छाएं हैं उसका कोई एंड नहीं है। There is no end to our desires. There is no end to our cravings. हम क्रेव करते रहते हैं, डिज़ायर करते रहते हैं, हमारी इच्छाओं का कभी अंत नहीं होता है ना? तो इसको बुद्धा ने क्या कहा है? बुद्धा ने इसको कहा है थ्रस्ट और तन्हा। जो हमारी इच्छाएं हैं जो कि कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होती है, इसको तन्हा या थर्स्ट कहा गया है। एंड दिस इज द टीचिंग ऑफ बुद्धा दैट दिस कॉन्स्टेंट क्रेविंग could be removed by following moderation in everything. We can become happy only when we are free of this constant craving. हर समय जो हम किसी न किसी चीज़ के लिए क्रेव करते हैं, दैट इज़ द रीज़न फॉर आर अनहैप्पीनेस, एंड वी कैन बिकम हैप्पी ओनली by end of this constant craving, and this constant craving can be removed by following moderation in everything. Moderate होके चलिए, अपनी जो इच्छाएं हैं उसको लिमिट करिए, क्योंकि हमारे अगर एक इच्छा पूरी होती है तो हम दूसरी के लिए डिज़ायर करते हैं, दूसरी पूरी होती है तीसरे के लिए, एंड इन दिस वे वी आर ऑलवेज अनहैप्पी. सो इंस्टेड ऑफ बीइंग अनहैप्पी वी शुड try to be happy. And how we can become happy? Only by removing constant craving. अपनी इच्छाओं को सीमित कर लेंगे अगर हम, if we limit our desires, if we limit our cravings, then we will become happy. सपोज आपको आपके पेरेंट्स ने एक नई पेंसिल बॉक्स के लिए, आप बहुत दिनों से मम्मा से अपने परेशान कर रहे थे, मुझे एक नई पेंसिल बॉक्स चाहिए। जैसे मेरी फ्रेंड जो मेरे साथ बैठता है उसने एक नई पेंसिल बॉक्स उसकी आई है, मुझे वैसी ही चाहिए। बिल्कुल आप बहुत रो रहे हैं, बहुत परेशान हैं, चलो मम्मा मान जाती है। 1-2 दिन आपने बहुत तंग किया, रोए, बहुत बोले, मम्मा ने खरीद दिया आपके लिए एक नया पेंसिल बॉक्स, आप बहुत खुश हो गए, है ना? यू आर वेरी हैप्पी। बट फिर क्या हो रहा है कि थोड़े ही दिनों बाद आपने देखा कि एक दूसरा फ्रेंड है, उसने बहुत ही सुंदर सा लंच बॉक्स लाया है, और आपका लंच बॉक्स तो बिल्कुल उसके सामने बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। अब क्या करें? अब फिर रोना शुरू, मम्मा से मुझे नया लंच बॉक्स चाहिए, वैसा ही लंच बॉक्स चाहिए जैसा मेरा फ्रेंड ला रहा है। आप बिल्कुल परेशान हो जाते हैं, रोते रह रहे। तो चलो भाई, मम्मा ने आपके लिए लंच बॉक्स भी खरीद दिया कि तुम खुश हो जाओगे। आप बहुत खुश हो गए, लंच बॉक्स आया तो आप बहुत खुश हो गए। लेकिन
फिर क्या देख रहे हैं, थोड़े दिनों बाद फिर आपने देखा कि किसी और के पास एक नई बैग है, बहुत ही खूबसूरत बैग है, अब आप फिर से रो रहे हो बैग के लिए। तो दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ कांस्टेंट क्रेविंग, है ना। हर समय हम लोग किसी न किसी चीज़ की डिज़ायर करते हैं, किसी न किसी चीज़ की इच्छा करते हैं, और यही जो कांस्टेंट डिज़ायर होता है, जो कांस्टेंट क्रेविंग होता है, वो हमें दुखी करता है। अगर हम नहीं चाहें, नहीं हमें नई पेंसिल बॉक्स नहीं चाहिए, जो पेंसिल बॉक्स हमारे पास है वो सही है, काम सही कर रही है, वॉट एवर वर्क इट इज़ सपोज टू डू, इट इज़ डूइंग इट्स वर्क, हमारे काम आ रहा है ये, हमें नया नहीं चाहिए। अगर हम ऐसा सोचेंगे तो हमारे पास हम दुखी नहीं होंगे, है ना। तो अगर हम चाहते हैं कि लाइफ में हमारे हैप्पीनेस आए, तो ये कैसे आएगी? बाय लिमिटिंग आवर डिज़ायर्स, है ना। तो दिस इज़ द टीचिंग ऑफ बुद्धा। एंड द नेक्स्ट थिंग वी सी अबाउट बुद्धा इज दैट ही ऑल्सो टॉट पीपल टू बी काइंड, है ना, एंड टू रिस्पेक्ट द लाइफ्स ऑफ अदर्स, नॉट ओनली द ह्यूमन बींग्स बट ऑल्सो द animals, है ना. The lives of animals should also be respected. We should not kill the animals. We should not harm the animals. Even the smallest animals should not be harmed by us. So this is he believed that the result of our actions, whatever we do, whatever is our karma, is going to affect us in this life and in the next life, है ना. Buddha believed in life after death, next life, दूसरी लाइफ में जो है वो बिलीव करते थे. तो उनका कहना था कि जो कुछ भी हम करते हैं, जो कुछ भी हमारे कर्म होते हैं, चाहे वो अच्छे हों चाहे वो बुरे हों, these karmas are going to affect us both in this life and the next, है ना. इस लाइफ में और नेक्स्ट लाइफ में वो हमको अफेक्ट करेगा ही करेगा, ठीक है. और बुद्धा ने सबसे दूसरी जो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ गौतम बुद्धा के बारे में, क्यों वो इतने पॉपुलर हुए, वाई पीपल लाइक हिम सो मच, वाई पीपल स्टार्टेड टू फॉलो हिम, बिकॉज he taught in the language of the ordinary people. If you remember the Vedas which were prevalent at that time, the Vedas were written in Sanskrit, है ना, and Vedic Sanskrit, and there were people, common people who were not knowing this language, so they were not able to understand Vedas. So they were not having any attachment with that book. जिसको हम समझेंगे ही नहीं, उससे हमारा क्या अटैचमेंट होगा. बस प्रीस्ट थे, जो ब्राह्मण्स थे, दे वर ओनली देयर टू अंडरस्टैंड एंड टू टीच द पीपल अबाउट दीज वेदास, है ना. तो जो कॉमन पीपल थे उनके लिए उस धर्म का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं था. लेकिन अब जो धर्म जो गौतम बुद्धा ने लाया, बुद्धिज़्म, वहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि बुद्धा ने जो भी लोगों को जो कुछ भी पढ़ाते थे, बताते थे, सिखाते थे, ऑल दिस वाज डन इन ऑर्डिनरी पीपल लैंग्वेज, लैंग्वेज ऑफ द ऑर्डिनरी पीपल, दैट इज़ प्राकृत, है ना. प्राकृत था, इसलिए प्राकृत में पढ़ाते थे ताकि हर कोई उसको समझ सके, है ना. और जब वो समझेंगे तभी तो उसको सही से वो फॉलो करेंगे. सो दिस वाज मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग अबाउट दिस बुद्धिज़्म. Other than this, we find that the way of teaching of Buddha was also very logical and interesting. First of all, you must understand that Buddha never asked people to follow him blindly. Whatever I am saying, it is true and you have to follow this. No, this was never the way of teaching of Buddha. He always encouraged people to think for themselves. You think yourself, whatever I am saying, you just think over it, and if you feel that I am saying the truth, then you accept it, and if you feel that I am not saying the truth, don't accept it, है ना. So he always encouraged people to think for themselves and not just simply accept what he said. Don't accept what I am saying, just think over it. And if you feel that I'm right, then you follow me. We can understand this with one of the story. The story is of Kesa Gotami. The story of
So this we see that there was a woman named Kisa Gautami, ठीक है, and her son had died. She was very much sad because the death of her son was highly intolerable for her. She roamed through the streets of the city carrying the child with her. She was roaming. She was completely restless and she was asking for help to bring him back to life. He wanted that his son should be alive. कैसे उसकी लाइफ को फिर से वापस लाया जाए, मतलब शी वॉज नॉट रेडी टू एक्सेप्ट दैट हिज सन हैड डाइड. शी वॉज जस्ट so restless, she was so sad, she just wanted that his life should come back, he should again be alive. So her condition was highly unbearable. Then in that case what we see that in that story it is said that a kind man took her to the Buddha, because Buddha was a very wise person. He thought that Buddha will be able to make her understand the things, Buddha will be able to make her accept the reality. So he brought her, took her to Buddha. Now Buddha asked the woman Kisa Gautami, bring me a handful of mustard seeds. Okay, मुझे एक बस मैं आपके बच्चे को जिंदा कर दूंगा. I will make him alive. Just bring me a handful of mustard seeds. But one condition is there that the seed must come from the house of a family where nobody has died. Okay. So when she heard that Buddha is asking her to bring a handful of mustard seeds, and only by bringing a handful of mustard seeds he will bring the child back to life, she became very happy. But the next moment when Buddha said that the seeds must come from the house of a family where nobody has died, this was quite disturbing for the woman. But still she went from door to door. She was asking for mustard seeds, but she was in search of such house where none of a family member has died. But what she found out that in each and every household some or the other, like कहीं पर father, कहीं पर mother, कहीं पर sister, brother, husband, wife, child, uncle, aunt, grandfather, grandmother, किसी न किसी की डेथ तो हुई ही है. तो she was not able to find a house where nobody has died. So by this act, actually Buddha make her understand that death is not something which happened only to her son. It happens with each and everyone. In each and every family someone is died. So you have to accept it. ये डेथ जो है इसको आपको एक्सेप्ट करना होगा, बिकॉज दिस इज़ द अल्टीमेट ट्रूथ ऑफ लाइफ. एंड एवरीवन हु हैज़ टेकन बर्थ ही हैज़ टू डाई, ही और शी हैज़ टू डाई. तो आपको इसको एक्सेप्ट करना होगा. और जब उसने घर घर में जा कर के वो मस्टर्ड की सीड्स मांग रही है, और कोई भी किसी भी घर में उसको ऐसा नहीं घर मिला जहाँ किसी की डेथ ना हुई हो, तब शी केम टू अंडरस्टैंड कि उसको गौतम बुद्धा ने ये क्यों टास्क दिया है. बिकॉज शी विल नॉट फाइंड अ हाउस वेयर नो बडी हैज़ डाइड. उसको ऐसा घर मिलेगा ही नहीं. सो दिस इज़ द वे बुद्धा टॉट. और अब जब बुद्धा इस तरह से पढ़ाएंगे तो उनकी सवाल उनकी पढ़ाई पे कोई सवाल ही नहीं उठाएगा, क्योंकि हम तो खुद जो कह रहे हैं वो आकर कहते उस किसा गौतमी को कि डेथ इज़ द अल्टीमेट ट्रूथ ऑफ लाइफ, यू हैव टू एक्सेप्ट इट. तो वो नहीं एक्सेप्ट करती, फिर भी वो रोती रहती. वो यही कहती कि नहीं, मेरे बच्चे को वापस लाइफ चाहिए. जब उसको उन्होंने ये टास्क दिया कि आप जाकर के सीड ऐसे घर से लाओ जहाँ किसी की भी डेथ ना हुई हो, तब जब वो घर घर घूमी और उसको ये दिखा कि नहीं, एक भी ऐसा घर नहीं है जहाँ पर कि किसी की डेथ ना हुई हो, तब उसको ये समझ में आ गया कि डेथ को हमें एक्सेप्ट करना होता है ना. तो दिस इज़ द वे. और इसलिए बुद्धा की पॉपुलैरिटी इतनी ज़्यादा थी.
उस समय की सोसाइटी में लोग इतने ज़्यादा बुद्धा को रिस्पेक्ट करते थे, उनको फॉलो किया, बुद्धिज़्म को फॉलो किया, और बुद्धिज़्म एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट, सबसे इम्पॉर्टेंट रिलीजन बना था उस समय का। आगे हम लोग इसके बारे में, बुद्धिज़्म तो हमने कर लिया है, बुद्धिज़्म के बारे में फिर से जब अशोका के बारे में आप पढ़ेंगे अगले चैप्टर्स में, तो फिर यू विल रीड अबाउट बुद्धा। तो अभी हम लोगों का आज का वी हैव डन, ओके, वी विल कंटिन्यू विद दिस चैप्टर इन द नेक्स्ट क्लास।